જૂનાગઢ ગિરનાર અંબાજી મંદિરના મહંત તનસુખગીરી બાપુના નિધનના બીજા દિવસથી જ ગાદીપતિની નિમણૂક બાબતે સ્થાનિક અમુક સાધુ સંતો અને વર્ષોથી બાપુની સેવા ચાકરી કરતા પરિવારજનો વચ્ચે વિવાદ વકર્યો છે। ત્યારે હાલ અખાડાના અમુક સાધુ સંતોની હાજરીમાં ચાદર વિધિ કરી પ્રેમગીરી બાપુની નિયુક્તિ કરવામાં આવેલ છે। સમગ્ર સાધુ સંતોની સહમતિથી આ નિયુક્તિ ન થયું હોવાનું મહેશગીરી બાપુ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। તેમજ હાલ શાંતિથી મંદિરનું સંચાલન કરવામાં આવે તેમજ કલેક્ટર, પ્રશાસન અને અખાડાના બધા સાધુ સંતો સમજી અને યોગ્ય નિર્ણય લે તે જરૂરી છે તેમ મહેશગીરી બાપુ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। ત્યારે હાલ થયેલ ચાદર વિધિનો બાપુના પરિવારજનો દ્વારા સખત વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। તેમજ જો યોગ્ય નિર્ણય લેવાશે નહીં તો તેમના નજીકના પરિવારજનો દ્વારા આત્મવિલોપનની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે। ત્યારે આ બાબતે બાપુની વર્ષોથી સેવા કરતા પરિવારજનો અને મહેશગીરી બાપુ શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળીએ। સુઝાન ખાનની વિશિષ્ટ જ્વેલરી કલેક્શન હવે ગુજરાતમાં। કેડી ભિંડી જ્વેલર્સમાં આજે જ મુલાકાત લો, જ્યાં તમને મળશે હેરિટેજ, ઇટાલિયન રિયલ ડાયમંડ તેમજ 92.5 સિલ્વર કલેક્શન। ચાંચરડા રોડ, જૂનાગઢમાં કેડી ભિંડી જ્વેલર્સમાં આવો અને સુઝાન ખાનની આ જ્વેલરીની અદ્ભુત દુનિયામાં પ્રવેશ કરો। તમારો મનપસંદ દાગીના શોધવાની તક ગુમાવશો નહીં। મારું નામ દુષ્યંતગીરી કાંતિગીરી અપારનાથી છે। તનસુખગીરી બાપુજી હતા એ મારા સગા મોટા બાપુજી થતા, હું બચ અને મારા ગુરુજી હતા। એ અમારા જે દશનામ પરંપરા છે એવા મારા ગુરુજી છે અને એમાં એનો હું ચેલો પણ બનેલો છું। એ મારા ગુરુ છે તનસુખગીરી બાપુ, અને તનસુખગીરી બાપુ મારા ગુરુ છે અને બચપનથી હું તનસુખગીરી બાપુ જોડે રહેતો હતો એવી રીતે। અને બાપુ છે હું અહીંયા રાત્રે સૂતો, સવારે આરતી પૂજા બધું કરતો, બાપુની જોડે રહેતો, બાપુને સવારમાં હું નવરાવતો, એને કપડાં ચેન્જ કરી દેતો, પાવડર લગાવીને તમામ કમ્પ્લીટ કરતો હતો એવી રીતે। અને બધું બાપુ ભેગો જ હું રહેતો, કાળોતન બધું કરતો। અને છેલ્લે બાપુને મહિના દિવસથી અમે દવાખાનામાં ફરીએ છીએ। પહેલાં જે અમે રાખ્યા હતા કેજેમાં રાખ્યા હતા, પછી ત્યાંથી નો ફેર પડ્યો એટલે અમે ચિંતન યાદવ સાહેબ ત્યાં લઈ ગયા। આજે શું થયું? આજે શેના માટે વિરોધ છે? હા, પણ એ જ કહો ને, ત્યાં લઈ ગયા અને પછી અમે છે ને છેલ્લે ગોકુલ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા। પણ આજે અખાડા પરિષદમાંથી બધા એના યુવા મોટા સાધુ આવીને વરિષ્ઠ એ એમ કહે છે કે એને તમે કદાચ કોઈ ન હોય તો એની જગ્યાએ અમે પ્રેમગીરી બાપુની અને અથવા બીજા કોઈ સાધુની અમે નિમણૂક કરે, પણ એ અમારો પરિવાર કોઈ સ્વીકારવા તૈયાર નથી। અને તનસુખગીરી બાપુએ કીધું હતું જ કે અમારે વડવાની સમાધિ અહીંયા છે અને અમારા જ છે બધા એવી રીતે કે ચેલો થાય તો મારો દુષ્યંતગીરી જ થાય એવી રીતે બાપુએ મને ચોખ્ખું કીધેલું છે એવી રીતે। અને બધા અમારો દસનામ આખો ગૌસ્વામી સમાજ છે, બધાને પૂછી લેવાની છૂટ છે અને કાલને બધાને ખબર છે એવી રીતે કે દુષ્યંત તે જ કરવાનો છે। અને મહેશગીરી બાપુ એ અમારા વડીલ છે એવી રીતે। અને તનસુખગીરી બાપુની ઈચ્છા એ જ હતી કે દુષ્યંત મારો શિષ્ય બને એવી રીતે। અને તમામ પ્રકારનું તનસુખગીરી બાપુ મને ભેગો રાખતા બધું કારવતા એવી રીતે। અને આજે એમ કહે છે કે પ્રેમગીરી બાપુ કદાચ આવી જાય કે, અને હું ગિરનાર અંબાજી મંદિરમાં રહેતો, આરતી પૂજા કરતો અને તમામ પ્રકારનો વહીવટ હું કરતો, ભીડભંજન મંદિરમાં રહેતો, કારવતો અને વહીવટ હું જ કરતો એવી રીતે, આરતી પૂજા અને તમામ પ્રકારની એવી। અને આજે જે કીધું કે પ્રેમગીરી બાપુ આવી શકે અને બીજું કોઈ આવે એવી રીતે નહીં, હું કાયદેસરનો અહીંનો વારસદાર છું એવી રીતે। અને જો બીજા કોઈ સાધુ આવશે તો અમે સ્વીકારશું નહીં। અને જો અમને બળજબરી કાંઈ કરી કાઢવી તો અમે આત્મવિલોપન આઈને જ અમારી સમાધિ દે, અમે આઈને મરી જાઉં અને એના તમામ જવાબદાર બીજા રહે એવી રીતે, બરાબર? હા, અને અમારે આખો દસનામ સમાજ, અમારો પરિવાર અમારી હારે જ છે એવી રીતે। અને કોઈ બીજા આવશે જ નહીં, મને નહીં, મેં જ એવી રીતે એવી અમારે। અને અમારે કોઈ સાધુનો વિરોધ નથી, અમે કોઈનો વિરોધ, અમને છે અમારો દસનામ સમાજ, સાધુ સમાજ અમને સપોર્ટ આપે એવી રીતે અને અમારું છે અમને આપી દે। બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું અમારા પરિચય, હવે બસ હવે અમને બધા સપોર્ટ કરો। આ અમારું છે કોઈક બીજા લઈ લે, અમે હું કરશું હવે, તમે કઈ સમજી જાઓ, અમારી રોજી રોટી છીનો, અમારું જી છે હવે તમે કઈક કરી દો। બે હાથ જોડું બધાને એવી રીતે હવે તમને। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ हमारे सभी संत महात्मा, गुरुजन और सभी अखाड़े के पदाधिकारी और सभी को कि कल मैंने बहुत अच्छे से स्पष्टता की थी कि अखाड़े के साथ में हम हैं और हम सब अखाड़े में हैं, इससे कोई विवाद तो हो ही नहीं सकता। और अखाड़े की परंपरा इतने सालों से गुरु परंपरा को चलाते आ रहे हैं, इसलिए विरोध अखाड़े का था नहीं, अखाड़े का है नहीं और अखाड़े के साथ कभी रहेगा भी नहीं। इसमें यह बात तो स्पष्ट है। विरोध व्यक्ति का हो रहा है क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से विवाद इतना बड़ा बढ़ गया है जो अब धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। जूनागढ़ एक शांत शहर है, जूनागढ़ एक
शांत प्रकृति का है, जहां पर गिरनार इतना अंबाजी, दत्तात्रेय भगवान और उन सबके सिद्ध पीठ है, वहां की शांति बरकरार रहे, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए यहां पर यदि कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। तो उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाइए, ना कि अखाड़े के खिलाफ। और मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि अखाड़ा संरक्षक की भूमिका में होता है, अखाड़ा संरक्षण की भूमिका में होता है। और पूरे देश भर में अखाड़े के अलग अलग ब्रांच फैली हुई है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि गुजरात में जूनागढ़ में भी अखाड़ा है, यहाँ के स्थानिक संत है, सन्यासी संत है, दशनामी संत है, अखाड़ा के साधु संत है, वो सब मिलकर के और जो तनसुख गिरी बापू का परिवार है उनके साथ बैठ के एक अच्छा सा समन्वय साध करके पीर को बनाया जाए। और हमारी मांग और कोई नहीं है कि आप हमें हमारा यहाँ के लिए पीर दे दो, और पीर की मांग कर रहे हैं। जो चादर विधि यहां पर हुई वो चादर विधि योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कोई स्थानिक संत नहीं था, और आप आके यहां पर करके गए, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा वहां पर विवाद हुआ, ये इससे किसका भला हुआ? जूनागढ़ में ना किसी का भला हुआ और ना कि गिरनार के लिए कुछ अच्छा हुआ, इतना बड़ा विवाद बढ़ गया है। मैं अखाड़े के पदाधिकारी, अखाड़े के जितने भी साधु संत है भारत के, मैं ये कहूंगा कि किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे अखाड़े की साख आज दांव पर लग जाती है। ऐसा समय अगर आ गया है तो अखाड़े को भी अब थोड़ा विचार करना चाहिए। और बाकी जो कुछ भी होगा, स्थानिक संत यहाँ पर जितने भी है हमारे, सबने संन्यास लिया हुआ है, सबने विजयावन किया हुआ है, तो उनके साथ भी वार्तालाप हो, और ये वार्तालाप अच्छा स्वस्थ हो तो ये बहुत अच्छे से हो सकता है। और पीर बनाना, उज्जैन के पीर और यहाँ के पीर यहाँ के लोकल यहाँ के होंगे तो अच्छे से संवाद एक दूसरे के साथ होगा, धर्म का संरक्षण भी होगा। यहाँ के लोकल, जैसे मैंने कहा कि उनके सेवा में जो रहे हैं, उनके सेवा में रहने वालों के साथ वार्तालाप करके और पीर की जो मर्यादा होती है वो सब मर्यादा की बातें करके जो सहमति से होगा उससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन एक ही व्यक्ति तय करेगा, ये नुकसानदेह हो सकता है। मुझे तो यही कहना है कि इसके लिए हम अखाड़े के सभी संत, क्योंकि मैं भी अखाड़े से हूं और भी साधु संत अखाड़े से है और हमारे पदाधिकारी है, ये सब मिलकर के इसके ऊपर विचार और राय होनी चाहिए। नुकसान यदि होगा तो उससे एक बात तो तय है, नुकसान धर्म का होगा। और हम तो संरक्षण, अखाड़ा तो संरक्षण देता है, अखाड़े को संरक्षण देना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कलेक्टर श्री साहब को। ये कलेक्टर श्री साहब, इसके जो हुकूमत होती है, इसका जो ऑर्डर किया जाता है, ये कलेक्टर के द्वारा होता है और चैरिटी कमिश्नर में उसकी नोंद होती है। और वहां पर बड़े पीर, छोटे पीर, ऐसे 2 पीर ट्रस्टी है। तो जब किसी ट्रस्ट में एक ट्रस्टी देवलोक हो जाता है तो दूसरा ट्रस्टी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है और वो संभालता है। तब तक हंगामी तौर पर उसको वो जिम्मेदारी दे दे तो वो विवाद होगा नहीं। जो भी चादर विधि हुई वो सबके सहमति से नहीं हुई है। मेरा ये कहना है कि सहमति से होगी तो विवाद नहीं होगा। अगर ये सहमति से अब भी मैं कहता हूं, अब भी सहमति के साथ अगर होता है, गिरनार के स्थानिक संतों के साथ बैठ करके, बिना किसी का मान सम्मान गिराए, स्थानिक संतों के साथ बैठ के, और जो गुरु परंपरा के मर्यादा को देखते हुए उनकी सेवा जिन्होंने की है, जिन्होंने उनका टॉयलेट साफ किया है, जिन्होंने उनकी इतने सालों तक सेवा की है, उनके भी साथ बैठ लिया जाए और प्रशासन के साथ बैठ लिया जाए। एक सहमति से अच्छा विचार होगा तो इससे सबकी इज्जत बढ़ेगी। विधि और ये सब अखाड़े की परंपरा है, पर जिस तरह का ट्रस्ट बना होता है तो ये प्रशासन और वो उसमें जब तक रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक नहीं होता। दूसरी बात, जो चादर विधि हुई है तो वो वहां पर हुई है जो सहमति के साथ, सभी के साथ सहमति से नहीं हुई है तो उसको तब तक वो नहीं माना जा सकता कि वो कायदे से हुई है। सबकी सहमति उसमें थी नहीं, ना स्थानिक संत कोई थे उसमें, जो वो भी तो अखाड़े की है। जो यहाँ के साधु संत है वो कोई बाहर से थोड़ी, एलियन थोड़ी है। जो जूनागढ़ में साधु संत सन्यासी है वो क्या ऊपर से आए एलियन है? वो भी तो यहीं के अखाड़े से ही बने हैं। सबके साथ सहमति होकर के बात चलेगी, बात होगी, सहमति से बनता तो उसको कायदे से की गई चादर विधि माना भी जाता।
बाबू बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच मामला का- लंबा खींच रहा है। मैंने इसीलिए कहा बीच का रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता यही है कि कलेक्टर संरक्षक होता है इस पूरे शहर का, और उन्हीं के पास ये सत्ता है व्यवस्था संभालने की। और अभी ये हो सकता है कि मामलतदार को रख दे, पहले भी ऐसी प्रैक्टिस हुई है, मामलतदार को रख दे, अभी वहां पर शांति से सब चलने दे। दूसरे ट्रस्टी अभी तक जीवित है तो उनके साथ समन्वय साधकर मामलतदार उस संस्था को चलाते रहे। थोड़े दिन के बाद जब सबके साथ बात हो जाएगी, अखाड़े के पदाधिकारी के साथ, स्थानिक संतों के साथ, इन सबकी एकत्रित करके मीटिंग बुलाई जाए, एक दूसरे का सम्मान रख कर बात की जाए, तो बहुत अच्छे से एक समाधान आ सकता है जिससे धर्म का नुकसान नहीं होगा। तो एक बात ये भी आ रही है कि जूनागढ़ के जो स्थानीय संत है और लोग है, जो सामाजिक संस्था है, वो बाहर के संत जो यहाँ के भवनाथ मंदिर हो या किसी मंदिर में बन जाते हैं महंत, तो वो यहाँ रहते नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये कल मैंने स्पष्ट किया था कि पीर बापू भवनाथ मंदिर के महंत पहले से थे। अब जो आगे पीर आएंगे उनके 2-3 चेले बना दो, वो 2-3 चेले बन जाएंगे, एक को भवनाथ में बैठा दो, एक को अंबाजी में बैठा दो, एक को बाकी जो होगा उनका और कोई भीड़ भंजन और ऐसे सब जगह जो होगी वहां बैठा दो, तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। मैं तो उस बीच का ही रास्ता बता रहा हूं, समाधान का रास्ता बता रहा हूं। जितना जल्दी से अच्छे से करेंगे तो हो सकता है। और समाधि चेला बनाने की परंपरा तो है ही, तो पीर जी के 3-4 चेले बना के जो एक जगह है उनको वहां पर बैठा दो। पर बनाते वक्त ये भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि धर्म का पैसा जब जब एकत्रित होता है बुद्धि भ्रष्ट करता है। धर्म का पैसा आया तुरंत परोपकार में लगना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो जिसको भी बैठा है वो एक अच्छा व्यक्ति हो, जो धर्म को मानता हुआ होना चाहिए और परोपकारी हो। मैं पहला पण कीधुं छे के मैं दावो कर्यो नथी अने करवानो नथी, पहला स्पष्ट करी दीधुं तो आजे नहीं, पहलेथी ज। हाँ, मैं कीधुं के मारो हक लागे केम के बधुं छे, पण मैं दावो कर्यो नथी ने करवानो नथी। एक बात बीजी आवे के बधा मळीने एम के तमे आगळ वधो ने आवुं बधुं करो, तो हूँ एम कहीश के भाई तमे कोई आ सारो व्यक्ति होय एने हूँ मदद करीश। मैं एम कीधुं नथी के मने बेसवुं छे, मैं एम कीधुं ज नथी। अने पछी अखाड़ाना परंपराथी जे कई नक्की थाय ए अखाड़ानी वात छे, पण मैं हजी नथी कीधुं ने आगळ पण नथी कहेवानो। हूँ अत्यारे जे जग्या संभाळुं छुं एमां ज मने टाइम नथी मळतो मारा वाला। બાપુ તમે જે સહી સિક્કાની વાત આવે છે કાગળમાં કરેલી, એ જ્યારે સમય આવશે ત્યારે હું એને, અત્યારે એનો સમય નથી, જ્યારે એની જરૂર પડશે કે ભાઈ હવે કાગળોની જરૂર પડી ત્યારે વાત કરીશ, એમાં સાક્ષી વિડીયો ને એ બધું હશે, એ બધું ત્યારે હું કહીશ। અત્યારે એનો કોઈ સમય નથી। જૂનાગઢમાં વર્ષોથી પડદા માટે જાણીતું એક જ સ્થળ જ્યાં તમને જોવા મળશે પડદાની વિશાળ રેન્જ સાથે નવા ફર્નિચર અને સોફા ઇન્ટેરિયર ડિઝાઇન મુજબ બનાવવા માટે એક મુલાકાત અવશ્ય લ્યો। તળાવ દરવાજા સહયોગ ચેમ્બર સામે જૂનાગઢ।